high-speed ADC and DAC interfacing with the microcontroller. First, we will see the introduction of ADC. What is the ADC? ADC is nothing but the analog to digital converter. So, ADC, it converts analog signals or voltage to digital. That is called as a ADC. So ADC are available in different size. We can say that 8, 10, 12 and 16 bits. So these are the size of ADC. Most important parameters of ADC is nothing but the resolution. So what is the resolution? The smallest change in an analog input that can be detected by ADC to get minimum 1 digit change at a digital output. It is resolution of the ADC. In short, we can say that it is also defined by the numbers of bits and reference voltage level of ADC. So here resolution is nothing but V reference upon 2 raised to n minus 1. So here V reference is nothing but reference voltage applied to the ADC. This is called as a applied voltage. This is called as a applied voltage. And n is nothing but the numbers of output bits of the ADC. So now next is type. ADC are available in parallel and serial form. There are different types: serial ADC, and next is parallel ADC. Example of serial ADC is nothing but MAX 112, and parallel ADC nothing but ADC 0809 and ADC 08008. So these are the names of the IC which are available in the market. Now we are going to study here or interfacing the parallel ADC. We are going to study here ADC. It is the 8-bit ADC. So this 8-bit ADC has 8 channels. It is sometimes called as a input, and it is 0 to input 7. It has 3 address line. They are called A0, A1 and A2. These are called as address lines. It is also called sometimes AD0, AD1, AD2. They are called as address lines. With the help of these address lines, we can select any one channel of the ADC. Suppose AD0, AD1 and AD2, and here channel. If these are the pins are assigned as a 00, then channel 1 will be selected. So in this way 1 1 1. So here if we will assign AD0 to AD2 as a 1 1 1, then IN7, that means channel 1 will be selected. In this way we can choose any one channel as per your requirement. Suppose we want to select channel 7, then we have to assign AD0 to AD2 as 111, then channel 7 will be selected. So ADC has
hand shaking signal or control signal. They are first end of conversion, next is EOC and OE. They are called as a hand shaking signal and control signal of the ADC. Now, what is end of conversion? End of conversion is called as a start of conversion of analog data to digital. There is nothing but start of conversions to start of conversion of analog to digital. Now next is EOC. It is called as the end of conversion of analog data to digital. End of conversion of analog to digital. Output enable. It is used to enable the ADC IC. So these are the three most important handshaking signal we have to use whenever ADC interface with the microcontroller. Now next we will see interfacing of ADC with the 8051 microcontroller. See, this is the interfacing diagrams of ADC with microcontroller. So here, handshaking signal start of conversion, address latch enable, OE and end of conversion. For that we have to use here the port 1. Now this ADC has 8 bit, so that's why D0 to D7 which are connected to port 2 of the microcontroller. Now address lines of the ADC which are connected to the microcontroller. To pin 1.2, 1.3 and 1.4 of the microcontroller. तो पहले हमें चैनल को सिलेक्ट करना है. तो सपोज चैनल 1 को हमें सिलेक्ट करना है. तो चैनल 1 को सिलेक्ट करने के लिए पहले हमें क्या करना है, उसका एड्रेस सेंड करना है. तो एड्रेस सेंड किससे करेंगे, पोर्ट 1 से. तो यहाँ पे हमें उसका एड्रेस देना है 001 और 001 अगर देते हैं तो इट विल बी सिलेक्टेड. नेक्स्ट इज यहाँ पे हमें पहले क्या करना है, स्टार्ट ऑफ कन्वर्शन. माइक्रोकंट्रोलर जब तक स्टार्ट ऑफ कन्वर्शन सिग्नल हाई नहीं देता तब तक एडीसी वर्क नहीं करती है. जैसे स्टार्ट ऑफ कन्वर्शन हाई हो जाता है तो एलसीडी विल स्टार्ट दी वर्क. उसके बाद वो वर्क कंटिन्यू चालू रहता है जब तक एंड ऑफ कन्वर्शन हाई नहीं होता. जैसे ही एंड ऑफ कन्वर्शन 1 हो जाता है तो माइक्रोकंट्रोलर को पता चल जाता है कि एडीसी ने उसका काम कंप्लीट किया है, एंड किया है. अभी उसके पास अवेलेबल जो डेटा है वो D0 D7 लैच में है, D0 to D7 लाइन पे अवेलेबल है. तो यहाँ पे बाद में माइक्रोकंट्रोलर क्या करता है, 1.1 पिन से आउटपुट इनेबल कर देता है. आउटपुट जैसे इनेबल कर देता है एडीसी D0 to D7 का डेटा माइक्रोकंट्रोलर के पास छोड़ देता है या माइक्रोकंट्रोलर उसको ले लेता है. इन दिस वे ये 1 बाइट के लिए ऑपरेशन होता है. ऐसे ए नंबर्स ऑफ बाइट के लिए एड्रेस, ए नंबर ऑफ बाइट के लिए ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है. सो इन दिस वे एडीसी कन्वर्ट दी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन. तो यहाँ पे जो सेंसर दिया LM35 उसका जो एनालॉग सिग्नल है वो IN1 पे दिया है. IN1 ऑलरेडी हमने सिलेक्ट किया है यहाँ पे. उसके बाद हम इसका प्रोग्राम देखेंगे कि प्रोग्राम में ये हैंडशेकिंग सिग्नल और डेटा लाइन कैसे यूज करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोग्राम डेवलप करने के लिए हमें सर्किट जो हमने ड्रॉ किया है उसका रेफरेंस लेना बहुत ज़रूरी रहता है.
तो इसका रेफरेंस लेके हम यहाँ पे प्रोग्राम बनाएंगे। फर्स्ट इज इंक्लूड रजिस्टर 51.h। हमें यहाँ पे डिले भी लगेगा, यहाँ पे वाइल डिले, वाइल का हम एक फंक्शन लेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन देंगे। अभी यहाँ पे हम हर एक पिन को, यहाँ पे जो पिन यूज़ किया है हर एक पिन को एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें एज बिट यूज़ करना है, टाइप ऑफ वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल एली के लिए हमें यहाँ पे पिट 2.4, एली के लिए हमने कौन सा यूज़ किया यहाँ पे 1.1, तो यहाँ पे सेमी कॉलन 1.1। नाउ देन एस बिट ओई के लिए कौन सा पिन यूज़ किया माइक्रो कंट्रोल का 1.1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों के लिए एक ही यूज़ किया है, तो आप ये यूज़ करो या यूज़ करो, ये और ये दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। वेरिएबल ये वेरिएबल यूज़ करो या ये वेरिएबल यूज़ करो, डिपेंड्स ऑन यू। नाउ एस बिट एससी, दैट मीन स्टार्टअप कन्वर्शन के लिए हमने क्या यूज़ किया 1.0, तो यहाँ पे हमने 1.0 लिया। उसके बाद एस बिट एंड ऑफ कन्वर्शन, एंड ऑफ कन्वर्शन के लिए हमने कौन सा पिन यूज़ किया यहाँ पे पिन 1.5, पिन 1.5 यूज़ किया। उसके बाद एस बिट ए 0, एस बिट A1, एस बिट A2। इसके लिए हमने पिन कौन से यूज़ किया यहाँ पे पिन 1.2, पिन 1.3 एंड पिन 1.4 पिन्स हमने यूज़ किए। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा हम लेने वाले हैं वो पोर्ट 2 पे लेने वाले हैं एडीसी का। तो यहाँ पे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर लेते हैं, SFR बोलते हैं उसको। यहाँ पे माय डेटा लेते हैं वेरिएबल, किसके लिए वेरिएबल पोर्ट 2 के लिए। तो अभी हमें यहाँ पे पिन यूज़ नहीं करना है, हमें अभी ये जो पिन्स है ये पिन यूज़ नहीं करना है, हमें क्या यूज़ करना है, ये जो हमने वेरिएबल यूज़ किया है वो प्रोग्राम में यूज़ करना है। तो यहाँ पे वाइल्ड मेन से प्रोग्राम हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है वाइल्ड। नाउ देन अनसाइन कैरेक्टर एक्स यूज करना है, ये हमें लगेगा वेरिएबल। और डेटा स्टोर करने के लिए हमें ये वेरिएबल लगेगा। माय डेटा हम किस में स्टोर करेंगे, एक्स में। इसके बाद माय डेटा इज इक्वल टू 0 या 5। तो यहाँ पे हमने क्या किया, माय डेटा ये जो है हमारा माय डेटा ये जो हमारा है यहाँ पे इनपुट है किसका, माइक्रो कंट्रोलर का। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे असाइन किया है यानी मेक किया है, मेक पोर्ट 2 एंड इनपुट पोर्ट, मेक एज ए इनपुट पोर्ट। नाउ नेक्स्ट इज हमें पहले क्या करना है, स्टार्ट ऑफ कन्वर्शन इज इक्वल टू 1 क्यों करना है, क्योंकि ये जो एंड ऑफ कन्वर्शन है ये माइक्रो कंट्रोलर का इनपुट है। तो हमें पहले क्या करना है, उस पिन को एज ए इनपुट पिन असाइन करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मेक एंड ऑफ कन्वर्शन एंड इनपुट पी। ऐसे हमें सबका करना है। एली इज इक्वल टू 0 बिकॉज वो क्या है, आउटपुट है, आउटपुट पेन है एली
आउटपुट मीन्स। उसके बाद ये भी स्टार्टअप कन्वर्शन हमारा क्या है, आउटपुट पिन है, तो इसको हमने क्या किया, एस इज इक्वल टू आउटपुट पिन ऑफ म्यूजिक, आउटपुट पिन ऑफ म्यूजिक। तो यहाँ पे इस पोर्शन में हमने क्या किया, हर एक पिन को इनपुट पिन और आउटपुट पिन जैसे हमें लगता है वैसे असाइन किया है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे व्हाइल, हमें कंटिन्यू स्कैन करना है इसका आउटपुट, तो उसके लिए हमें यहाँ पे व्हाइल लूप में सारा प्रोग्राम लिखना है। तो पहले हमें क्या करना है, जो एड्रेस लिया था हमने A0 A1 A2, तो इसको क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, हमें 001 सेमीकोलन। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे चैनल 1 को सिलेक्ट किया है, चैनल 1 यहाँ पे क्या होगा, हमारा सिलेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे हम डिले ऐड करेंगे, डिले 1 मिली सेकेंड्स का, एंड उसके बाद क्या करेंगे, एड्रेस स्लैश इनेबल को क्या करेंगे, एड्रेस स्लैश इनेबल को हाई करेंगे। नाउ अगेन वी हैव टू ऐड द डिले 1 मिली सेकेंड्स। तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू 1 हमने ये क्यों लिया है कि हमें क्या चाहिए, हाई टू लो, तो ये जो है हमारा एक है डिले। तो हाई टू लो पल्स किसको मिलता है, एडीसी को, तो एडीसी क्या करता है, कन्वर्शन स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे एंड ऑफ कन्वर्शन को चेक करना, व्हाइल एंड ऑफ कन्वर्शन इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, एडीसी कब कन्वर्शन कंप्लीट कर देता है उसका माइक्रोकंट्रोलर वेट करता है। जैसे ही ये 1 हो जाता है तो इसका मतलब ऐसा हो जाता है एडीसी ने अपना काम कंप्लीट कर दिया है। अभी डेटा एडीसी के पास अवेलेबल है D0 to D7 लैच पे। तो यहाँ पे बाद में आउटपुट इनेबल, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, आउटपुट इनेबल करना है ताकि माइक्रो कंट्रोल को डेटा रिसीव हो। तो आउटपुट इनेबल इज इक्वल टू 1 क्या है हमने यहाँ पे, या आउटपुट इनेबल यहाँ पे एड्रेस स्लैश इनेबल इज इक्वल टू 1 के करना है। नाउ देन यहाँ पे हमने क्या करना है, डिले ऐड करना है 1 मिली सेकेंड्स का, एंड उसके बाद हमें क्या करना है, जो डेटा मिला है वो हमें कहाँ पे, माय डेटा। तो माय डेटा यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है हमें, पोर्ट, कौन से पोर्ट पे मिल रहा है हमें, पोर्ट 2 पे। तो पोर्ट 2 के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे पोर्ट 2 का डेटा के लिए हमने माय डेटा ये इस पोर्ट को नाम दिया था, और उसके लिए हमने अनसाइन कैरेक्टर x यूज किया था। तो हमारे x वेरिएबल पे हमें क्या मिलेगा, डिजिटल डेटा। तो यहाँ पे हमें डेटा कौन सा मिल रहा है, यहाँ पे डिजिटल डेटा कहाँ पे स्टोर है हमारा, x वेरिएबल पे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आउटपुट इनेबल को 0 करना है क्योंकि डेटा भी 1 बाइट मिल चुका है। तो ये जो रहेगा कर्ली ब्रैकेट व्हाइल लूप का, और ये रहेगा मेन लूप का। तो ये प्रोग्राम हो चुका है। तो इस तरह से आप प्रोग्राम कर सकते हैं, और ये सेम प्रोग्राम आप यूज कर सकते हैं टेम्परेचर इंटरफेसिंग के लिए, टेम्परेचर LM235 सेंसर इंटरफेसिंग विद माइक्रो कंट्रोलर के लिए भी। इंटरफेसिंग डायग्राम इसकी भी हो सकती है, 8051 कनेक्शन टू टेम्परेचर सेंसर LM35। ओके, और इसको नाम दे सकते हैं हम इंटरफेसिंग ऑफ टेम्परेचर सेंसर LM35 with 8051।